In previous video, we had discussed about the chromium complexes, in which we discussed about their various oxidation states and their corresponding complexes formed in that oxidation state. Today we are going to discuss about the manganese. Now manganese has outer electronic configuration is 3d5 4s2. It is mainly exist in the ores, that is pyrolusite, braunite or hosemanite. However, in order to extract the pure manganese from the ore, we have used only hosemanite because it is quite stable and give a proper reaction. How, however, these two oxides ores are very explosive and very difficult to control their reaction. So we use only hosemanite in order to extract the pure manganese. However, if we want to use these ore, we have to first convert these ores into hosemanite ore. Now we are moving towards the extraction of pure manganese. इसमें क्या होगा, द मैग्नीज इज जनरली obtained from these ores by the reduction of aluminium. If we as I described earlier, that if you want to use these ores, you have to first convert into hosemanite. So similar manner, the reaction would be converted into Mn3O4. We use Mn3O4 and diffuse on the aluminium in order to extract the pure manganese. This is the only reaction in order to extract the pure manganese from their respective ores. Now next is moving towards the variable oxidation states. However, we know that due to presence of d orbital, as the size of these metal is quite small and they have tendency to show large variety of oxidation state. In the similar manner, manganese has a chance to show their oxidation state from -3 to +7 as +7. However, out of all these oxidation state, +2 is most stable oxidation state, and maximum compounds we are able to know about the MnO4 negative, that is of 7 +7 oxidation state. So we discuss only from +7 to +2 oxidation state in our syllabus. Rest will not be included. Now next is physical and chemical properties of manganese. The firstly, it is a reddish grey metal, melt at 1245 degrees Celsius, boil at this temperature. It exists in 3 allotropic form. It is not very reactive towards known metals at very ordinary temperature, ordinary conditions. Only impure manganese decomposes water. जब भी आप इम्प्योर मैग्नीज लोगे तो उसे वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तभी रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा. इट फॉर्म्स ऑक्साइड कोटिंग एंड टार्निश रैपिडली इन द मॉइस्ट एयर. इसमें क्या है कि ये एटमॉस्फेयर की जो प्रेजेंट मॉइस्चर प्रेजेंट होता है हमारी एयर में, उसके साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म कर लेता है, जिस वजह से ये काफ़ी टार्निश हो जाता है, यानी कि डल कलर का हो जाता है. Next we are discussed about the oxidation state of Mn+7. In today's video we are more focused about this oxidation state only. In the next video we discussed about the another oxidation states of manganese compound. The first is the best known compound of this oxidation state is MnO4 negative, जिसे हम पोटाशियम पर मैग्नेट बोलते हैं. इन ऑर्डर टू, अगर आप इसे न्यूट्रल करोगे तो ये पोटाशियम पर मैग्नेट है. On large scale, it is stable, prepared by the electrolytic reduction of MnO4 to negative. अगर आप इसे लार्ज स्केल पर इंडस्ट्री लेवल पर प्रिपेयर करते हो तो इसका प्रिपरेशन के लिए हम जो कॉम्प्लेक्स आयन यूज़ करते हैं, दैट विल बी MnO4 to negative. With the help of electrolytic reduction, you got changes into MnO4 negative. One electron is released. I mentioned only the ionic form of that equation, otherwise neutrality provide करने के लिए और ions भी होंगे. जैसे अगर if we talk about this complex that is KMnO4, अभी यहाँ पर सिर्फ आयनिक की बात हो रही है क्योंकि मैग्नीज पर डिस्कशन हो रही है, इसलिए पोटाशियम को हमने K पॉजिटिव की फॉर्म में इंक्लूड नहीं किया. तो हमारे पास नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन. Mn7 is strongly oxidizing agent. As we already know, because we have performed conductometric
volumetric titration of potassium permanganate. It acts as a strong oxidizing agent, that is it has own tendency to reduce, while the another compound present in the redox reaction, it get oxidized due to presence of this ion. So Mn7 is strongly oxidizing agent. Mn2O7 is it changes into MnO2 plus 3 oxygen, that is quite explosive. It gives strongly acidic solution due to the formation of परमैग्निक एसिड. अगर आप इसे Mn2O7 को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो तो परमैग्निक एसिड की फॉर्मेशन होती है. इट इज़ सो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इट कैचेस फायर ऑन कंटेक्ट विद द पेपर, वूल और कॉटन. ये इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है परमैग्निक एसिड में कि जब आप इसे कॉन्टेक्ट में लेकर आते हो पेपर या किसी भी वूल जो जल्दी से फायर को कैच कर लेते हैं, ऐसे थिंग्स को इसके पास लेके आते हो तो ये फायर कैच कर लेते हैं. द परमैग्नेट आयन रिएक्ट विद द एसिड बेस और न्यूट्रल सोल्यूशन. हम इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ये एसिड बेस और न्यूट्रल लिगेंड्स के साथ कैसा रिएक्शन देता है. तो इस डिस्कशन को अभी हम लेफ्ट कर रहे हैं. If small amount of sulfuric acid is added in it form MnO3 positive. This is हमारे पास ये पहला कैटायनिक फॉर्म है. ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है. जब हमारे पास पर्पल से सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में अगर ग्रीन कलर हो जाए आपके सोल्यूशन का, दैट मीन्स आपके जो सोल्यूशन है उसके अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट है, MnO3 पॉजिटिव. ये ओनली कैटायन रिएक्शंस में देखने को मिला है. इट्स क्वाइट स्टेबल नाउ. द 3HSO4 नेगेटिव और जो साइड प्रोडक्ट है वो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगी. नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 उसको आप क्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दो तो इट गिव्स अनस्टेबल ऑक्सीक्लोराइड. तो Mn2O7 को जब आप क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये ऑक्सीक्लोराइड्स देंगे, पर ये जो ऑक्सीक्लोराइड्स होंगे ये सारे के सारे अनस्टेबल नेचर के हैं. नाउ जो मैंने डिस्कशन में अभी छोड़ा था पार्ट वो डिस्कस कर रहे हैं कि एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 किस तरह से रिएक्शन शो करता है. सबसे पहले क्या है, एसिडिक मीडियम ले रहे हो तो उसके कॉरस्पॉन्ड एसिड आप कोई सा भी ले सकते हो. ज़्यादातर हम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेफर करते हैं. KMnO4 जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास रिस्पेक्टिव सल्फेट बन जाएगा और मैग्नीज का भी सल्फेट होगा और वाटर इवॉल्व होगा प्लस नेसेंट ऑक्सीजन. तो जब भी आप एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग सल्फेट्स मिलेंगे प्लस नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगी. अभी ये रिएक्शन हमारा मॉलिक्यूलर की फॉर्म में है. मैं इसे ज़्यादातर आयनिक की फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ. तो आयनिक में क्या होगा, आप K पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड से कैंसिल आउट. MnO4 नेगेटिव, 8H पॉजिटिव और 5 इलेक्ट्रॉन्स, Mn2 पॉजिटिव और 4 वाटर. तो हमारी जो आयनिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में रहेगी. मैं इसी इक्वेशन को ही ज़्यादातर इन रिएक्शंस में यूज़ करूँगी इन ऑर्डर टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. तो हमारे पास सबसे पहले जो आपके पास कंपाउंड है दैट इज़ फेरस टू फेरिक. हमें फेरस को फेरिक में चेंज करना है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा. दैट मीन्स फेरस का मतलब क्या होता है, O का मतलब होता है लो ऑक्सीडेशन स्टेट. लो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब आयरन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव, जो स्टेबल हैं, जिनके कंपाउंड्स हमें वेल नोन है. वैसे तो इसकी रेंज कम्प्लेक्स है पर वो इतने स्टेबल नहीं है. तो हमारे पास इक का मतलब होता है हाई. इक का मतलब हाई है. दैट मीन्स आउट ऑफ Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव कौन सी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, Fe3 पॉजिटिव एक्ट एज अ फेरिक और Fe2 पॉजिटिव एक्ट एज अ फेरस. तो अभी यहाँ पर क्या होगा, Fe2 पॉजिटिव जब रिएक्ट करेगा Fe3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड. तो अभी ये क्या है, ये कॉरस्पॉन्ड रिएक्शन चलेगा. एक रिएक्शन हमारा ऊपर है जो मैग्नीज के साथ हो रहा है. तो अभी क्या करोगे आप लोग, अभी इन दोनों रिएक्शन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होने हैं क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्ट में हमें इलेक्ट्रॉन शो नहीं होंगे. तो आप क्या करोगे, इनको 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और ओवरऑल इक्वेशन को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे. तो मैंने यही किया हुआ है. ये इक्वेशन मैंने तभी कॉमन निकाल कर रख ली. ये तो हर बार ही यूज़ होगी. आप कॉरस्पॉन्डिंग अपना जो भी रिएजेंट आपको बोला जाएगा आप उसकी रिएक्शन लिखोगे और उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उतना काउंट मल्टीप्लाई और बाद में ऐड कर दोगे.
तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन कैसी हो गई है, MnO4 नेगेटिव, 8H पॉजिटिव, 5Fe2 एज मैग्नीज 2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव और वाटर। तो ओवरऑल बस ऐड किया है। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड को आप सल्फर में चेंज करोगे। तो मैंने पहले भी बोला है कि मैंने आयनिक इक्वेशन यूज़ की है, दैट मीन्स आप भी यहाँ पर आयनिक करोगे। तो H को रिमूव करके हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रह गई, 2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव सल्फाइड, वो किस में रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, S0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट इज़ सल्फाइड को हम सल्फर में चेंज कर लेते हैं, एलिमेंटल फॉर्म में ले आते हैं। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। अब हमें पता है जो हमारी नॉर्मल इक्वेशन थी अभी मैग्नीज के लिए जो हमने की हुई है, वो क्या है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। तो इन फैक्टर्स का आप एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। तो यही मैंने लिखा हुआ है कि मैंने पहली इक्वेशन को बाय द फैक्टर विद 2 एंड देन वी ऐड द 3 एंड 1। तो मैंने उसी हिसाब से इसे ओवरऑल लिखा है। नेक्स्ट है हमारे पास, आप इसे नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करोगे। तो नाइट्राइट को भी सिमिलर मैनर में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करने से 1 इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होगा। फिर से प्रीवियस इक्वेशन में अभी 5 के साथ मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और इसे टोटल ऐड कर देना। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड को ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है। तो अभी इक्वेशन मैंने फिर से दोबारा से लिख दी है सो दैट मैं आपको फैक्टर्स क्लैरिफाई कर सकूं। एग्ज़ाम में भी आपने ये दोनों इक्वेशन एक साथ ही मेंशन करनी है। मैंने तो उसे हर बार यूज़ करना था, इसलिए मैंने इसे पहले लिख के रख लिया था। हर कंपाउंड की सिर्फ ये रिएक्शन मेंशन कर रही थी, तो आप एग्ज़ाम में दोनों मेंशन करोगे। तो ये वाला रिएक्शन फर्स्ट हमारा हो गया। ऑक्जेलिक एसिड को आप किस में चेंज करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन इवॉल्व होंगे। अभी फिर से 5 और 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल ऐड कर देना। अभी सबसे ज़्यादा रिएक्शन हमारे पास एसिडिक मीडियम के साथ ही हैं कि MnO4 एसिडिक मीडियम में कैसे बिहेव करता है। तो हमने पढ़ लिया कि वहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, रिस्पेक्टिव सल्फेट इवॉल्व होता है। तो अभी सिमिलर वे में अगर हम इसे न्यूट्रल मीडियम यानी कि वाटर के साथ यूज़ करें तो हमारे प्रोडक्ट कैसे होंगे, कि MnO4 किस में, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिस्पेक्टिव यहाँ पर सल्फेट नहीं है, इस बार OH है। तो हमारे पास मैग्नीज डाइऑक्साइड फॉर्म होगा प्लस नेसेंट ऑक्सीजन एज सच रिवॉल्व होगी। अभी शायद आपके टीचर्स ने जब कभी आपको पोटाशियम परमैंगनेट के साथ वॉल्यूमेट्रिक करवाई हो तो वहाँ पर वर्ड मेंशन होता है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज़ करना। तो उसका रीज़न यही होता है कि अगर आप उसे स्टेल फॉर्म में यूज़ कर रहे हो तो वो थोड़े समय बाद, थोड़े टाइम के बाद कि MnO4 वाटर के साथ, क्योंकि हर सोल्यूशन पोटाशियम परमैंगनेट का वाटर में ही फॉर्म किया होता है, तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीज डाइऑक्साइड की फॉर्म में चेंज हो जाता है, जो इतनी स्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो रिएक्शन का जो एंड पॉइंट हमने इमेजिन किया हुआ है उससे हमारा फ्लक्चुएट हो जाता है काफ़ी। इसलिए प्रेफर किया जाता है कि जब भी हम वॉल्यूमेट्री परफॉर्म करते हैं तो वो क्वाइट स्टेबल कि MnO4 की फॉर्म में हो। नेक्स्ट है हमारे पास, तो इसे मैंने फिर से अगेन आयनिक फॉर्म की फॉर्म में लिख रही हूँ। MnO4 नेगेटिव वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स, MnO2 4 ऑक्साइड। तो आप प्रेफर करना एग्जाम में आप आयनिक इक्वेशंस ही यूज़ करना। तो सिमिलर वे में हाइड्रोजन सल्फाइड को मैंने सल्फर में कैसे किया था, S2 नेगेटिव सल्फर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो उन दोनों को बाद में ऐड कर देना। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीज सल्फेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड में चेंज कर देगा। तो मैग्नीज 2 पॉजिटिव का मैंने सल्फेट का सिर्फ आयन लिया है, सल्फेट को इग्नोर करके Mn2 पॉजिटिव ले लिया। तो उसमें MnO4 नेगेटिव ऐड किया, वाटर एज सच, ओवरऑल रिएक्शन। इन सब में मैंने सिर्फ ओवरऑल रिएक्शन मेंशन की है। अगर आप जैसे एसिडिक में मैंने आपको डिस्कस किया था कि आप इसका अलग लिख सकते हो, इन दोनों को बाद में बैलेंस करके ऐड कर देना, तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारे पास थायोसल्फेट को हम सल्फेट या एन सल्फर में चेंज कर रहे हैं। तो हमारे पास थायोसल्फेट S2O3 नेगेटिव की फॉर्म है, यहाँ पर K2 हो सकता है। तो मैंने सिर्फ आयंस कंसिडर किए हैं, तो इन दोनों को ऐड किया और ओवरऑल यूज़ कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास एल्कलाइन मीडियम की इक्वेशन में। एल्कलाइन मीडियम की इक्वेशन में आप कैसे यूज़ करोगे कि MnO4 को वाटर के साथ रिएक्ट करवाकर MnO2 KOH और नेसेंट ऑक्सीजन इन्वॉल्व। अभी नेसेंट ऑक्सीजन को, इस इक्वेशन को आप यूज़ करते रहोगे आयोडाइड को आयोडेट में चेंज करने के लिए, आयोडाइड को आयोडेट में चेंज करने के लिए। MnO4 नेगेटिव को वाटर की प्रेजेंस में ये मैग्नीज डाइऑक्साइड की फॉर्म में चेंज होगा और हाइड्रोक्साइड आयन इवॉल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास इथाइलिन को इथिलीन ग्लाइकोल में चेंज करने के लिए C2H4 इथाइलिन इथीन जिसे आप बोलते हो उसे वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप ग्लाइकोल में चेंज कर दोगे। तो ग्लाइकोल्स हमारे जो एडजेसेंट का पोजीशन पर जब हमारे पास हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगे होते हैं तो उसे ग्लाइकोल्स की फैमिली बोलते हैं। सिमिलर वे में लास्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है, टॉलिन को बेंजोइक एसिड में चेंज करने के लिए। ये रिएक्शन हमने काफ़ी बार स्टडी किया है कि हमारे पास ऐसे बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप हो, उसको हम ऑक्सीडेशन कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ दैट इज़ नेसेंट ऑक्सीजन। वो नेसेंट ऑक्सीजन कैसे इवॉल्व हुई है, जब KMnO4 ने वाटर के साथ रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस की है। तो उसे आप ऐसे ऑक्सीडाइज करके किस में चेंज कर सकते हो, बेंजोइक एसिड में। नेक्स्ट है हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। MnO4 नेगेटिव किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट नो डाउट यहाँ पर +7 है। हमारे पास जो ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो डबल बॉन्ड O के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे और एक ऑक्सीजन हमारा नेगेटिव की फॉर्म में होगा। और जो हमारा स्ट्रक्चर होगा उसका ज्योमेट्री जिसे हम बोलते हैं दैट इज़ टेट्राहेड्रल। लास्ट है हमारे पास कि हमारा Mn2O7, इसकी स्ट्रक्चर भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो Mn2O7 का स्ट्रक्चर कैसे है, मैग्नीज का और ये ऑक्सीजन का हमारा डबल बॉन्ड ऐसा अच्छे रहेगा। तो इसे आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो और एक ऑक्सीजन हमारा शेयरिंग में होगा। ये ग्रीन कलर का ऑयल होता है और वेरी रिएक्टिव कंपाउंड है, इट रिएक्ट्स विद एक्सप्लोजिव वायलेंस। दैट मीन्स जब भी रिएक्शन होगी तो काफ़ी लार्ज अमाउंट में एनर्जी इवॉल्व होगी। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस मोर अबाउट द मैग्नीज आयन। थैंक यू।